Good morning. Hello friends, how are you? I'm fine. Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay. So in this lecture, we will solve different questions from the binomial theorem chapter. Okay. And I think it is going to be the last lecture from the binomial theorem. And if it is, I think if there is any need to prepare one lecture more, then we will prepare the another lecture also. Okay. So till now, just actually I am thinking that should be the last lecture from the binomial theorem, because the sixth lecture already I think already were given. So in the binomial theorem, those questions are going to be solved in this lecture. These are all important and these are conceptual also. Okay. For the exam level, this find the coefficient of x to the power 10, x to the power this, x to the power this, x to the power this. Find the middle term, find the term independent of x, and find the middle term. These type of questions are very important for the final exam. Okay, and the rest of the questions which were solved in different lectures and which are going to be solved in this lecture, these are all conceptual questions. Just this question solving, that means you are clearing the concept, you are going to the depth of this binomial theorem concept. Okay, so if you know the depth of any concept, then I think any questions can be confronted, any questions can be faced in the different exams as well. Okay, so just write the first question now. First question: if in the expansion of एक एक्सपेंशन दिया गया है 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस n minus 1. Okay, the coefficient of x to the power r, the coefficient of x to the power r is denoted by a. Okay, a r denoted by ar. Then prove that ar minus 1 plus a twice n minus r equals to 0. ठीक है. So according to the question, one expansion is given and 1 minus x whole to the power twice n minus 1. This is your expansion. So using this expansion, you need to, you need to prove something. Okay, and what is given here? The coefficient of x to the power r is denoted by a to the ar. Okay, so just write this thing. Given 1 minus x whole to the power twice n minus 1, the expansion and coefficient of x to the power r is a to the power r. Okay, so I think this a r minus 1, if x to the power, अगर r x के ऊपर रहे तो ये r नीचे रहेगा. That means similarity हम लोग देख रहे हैं. x to the power r का कोएफिशिएंट क्या होगा? ar. a to the power a r minus 1, ये क्या होगा? x to the power r minus 1. a n minus r, x to the power 2n minus r. मतलब x के ऊपर पावर जो रहेगा a के नीचे वो ही रहेगा. यही है यहां पर सिमिलरिटी. ठीक है. So here
ए आर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर, ये क्या होगा? तो ये है आपका एक्सपांशन, ठीक है। तो पावर क्या है? ट्वाइस एन माइनस वन सी एक्स के ऊपर, दैट मीन्स यहां पर देखो ये एक्स जो है सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के ऊपर जो पावर रहेगा वही पावर जो है सी के नीचे आएगा। ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जैसे कोई भी आप एक्सपेंशन बनाइए, एन सी जैसे 4 ए टू दी पावर एन माइनस 4 एक्स टू दी पावर क्या होता है? 4 होता है ना। दैट मीन्स ये नीचे जो रहता है एक्स के ऊपर पावर वो ही रहना चाहिए। तो दैट मीन्स यहां पर कोफिशिएंट किसका निकाल रहे हैं आप? एक्स टू दी पावर आर का निकाल रहे हैं। दैट मीन्स नीचे क्या आएगा? आर ही आएगा। फिर 1 टू दी पावर ट्वाइस एन माइनस 1 माइनस आर, फिर माइनस एक्स टू दी पावर आर, क्योंकि यहां पर एक्सपांशन तो बीच में माइनस है, तो माइनस ये होगा। तो दैट मीन्स ट्वाइस एन माइनस 1 सी आर 1 टू दी पावर चाहिए, वो 1 टू दी पावर लिखना तो जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी आप पावर यूज कर, आंसर जो है अल्टीमेटली 1 ही आएगा। तो ये है आपका, देखिए, सो दैट मीन्स ए आर तो यहां पर क्या है? मतलब ये पार्ट है सिर्फ एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट है। दैट मीन्स ट्वाइस एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 टू दी पावर आर। एक्स टू दी पावर आर यहां पर लिखना जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट लिखना है सिर्फ किसका? एक्स टू दी पावर आर का। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? एक्स टू दी पावर आर के साथ जो पार्ट है वही पार्ट कोफिशिएंट होगा, एक्स टू दी पावर आर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फिर अभी जो है हम लोग जो प्रूफ करना है उसमें जाएंगे। नाउ ये है आपका, ये पार्ट आपको प्रूफ करना है, ये सब मिटा दो। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल्स टू 0 प्रूफ कर। ये आर माइनस 1, ये क्या होगा? ट्वाइस एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 माइनस 1 टू दी पावर आर माइनस 1। दैट मीन्स नीचे जो रहेगा माइनस 1 के ऊपर पावर वो ही रहेगा, ठीक है। फिर ट्वाइस एन माइनस 1 सी ट्वाइस एन माइनस आर, तो यहां पर नीचे क्या है? नीचे जो है वो भी ट्वाइस एन माइनस आर सेम रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। सो दैट मीन्स ट्वाइस एन माइनस 1 सी, ये आर माइनस 1 की जगह ट्वाइस एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 लिख सकते हैं। ये माइनस 1 टू दी पावर आर माइनस 1 प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 सी ट्वाइस एन माइनस आर, यहां पर माइनस 1 टू दी पावर ट्वाइस एन माइनस 1 टू दी पावर माइनस आर लिख सकते हैं ना ऐसे है? ये जो है ट्वाइस एन माइनस 1 सी, ये भी ट्वाइस एन माइनस आर माइनस 1 टू दी पावर आर माइनस 1। ये कैलकुलेशन करके देखो, ट्वाइस एन माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस एन माइनस 1 सी ट्वाइस एन माइनस आर माइनस 1 टू दी पावर ट्वाइस एन। दैट मीन्स किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर ट्वाइस एन क्या है? इवन नंबर है। तो यहां पर माइनस 1 के ऊपर अगर इवन नंबर पावर है तो वो माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 नहीं होगा क्या? सो दैट मीन्स ये माइनस 1 टू दी पावर ट्वाइस एन जो है वो प्लस 1 है, और लिखना उसको जरूरत है नहीं, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या होगा? ट्वाइस एन माइनस 1 सी ट्वाइस एन माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 1 टू दी पावर आर माइनस 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर माइनस आर। ओके, नाउ अब क्या होगा? ट्वाइस एन माइनस 1 सी ट्वाइस एन माइनस आर माइनस 1 टू दी पावर
r minus 1 plus 1 by minus 1 to the power r. ठीक है? तो एलसीएम अगर ले अंदर ट्वाइस एन माइनस 1 सी ट्वाइस एन माइनस आर, अगर मैं एलसीएम लू नीचे माइनस 1 टू द पावर आर, तो क्या आएगा? माइनस 1 टू द पावर आर माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू द पावर आर प्लस 1. So that means twice n minus 1 c twice n minus r, ये दोनों मिलके पावर जो है वो प्लस हो जाएगा. that means 2r minus 1 plus 1 by 1 minus 1 to the power r. ठीक है? तो अब मुझे बोलो, ये जो माइनस 1 के ऊपर जो पावर दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा पावर है? ट्वाइस r minus 1. इज इट ए ऑड नंबर? ट्वाइस r minus 1, ये क्या ऑड नंबर है? 2r तो इवन नंबर है, हम लोग जानते हैं. दैट मीन्स किसी भी नंबर के साथ अगर 2 मल्टीप्लीकेशन में रहे तो वो तो इवन नंबर होता है, ये तो श्योर है. दैट मीन्स ट्वाइस r इज इवन नंबर. अब ट्वाइस r इवन नंबर से माइनस 1 कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो ऑड नंबर ही होगा. किसी भी इवन नंबर के साथ अगर आप प्लस 1 या फिर माइनस 1 करें, आपको ऑड नंबर ही मिलेगा. और ऑड नंबर यहां पर पावर है. माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर पावर है तो माइनस के एब्जॉर्ब होता है या फिर माइनस माइनस ही रहता है? माइनस माइनस ही रहता है. दैट मीन्स माइनस 1 टू द पावर r. तो क्या आ रहा है? ट्वाइस एन माइनस 1 c ट्वाइस एन माइनस r इंटू 0. दैट इज 0. राइट हैंड साइड प्रूव्ड. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग solution also. Okay, now next question लिखो. If a1, a2, a3, a4 be the coefficients of 4 consecutive terms. ऐसे लिखो. If a1, a2, a3, a4 a1, a2, a3, a4 be the coefficients of 4 consecutive terms. a1, a2, a3, a4 be the coefficients of 4 consecutive term of 1 plus x whole to the power n. 1 plus x whole to the power n. Okay, then prove that a1 by a1 plus a2 plus a3 by a3 plus a4 equals to 2 and 2 a2 by 2 into a2 by a2 plus a3. So this expression should be proved, and the given expression is 1 plus x whole to the power twice n, and the question is a1, a2, a3, a4 are the coefficients of 4 consecutive terms. अब 4 consecutive terms मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली आपको 4 टर्म लेना है, एक के बाद एक. ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, आपको बीच में गैप नहीं लेना है. जब 4 टर्म लेना है वो एक साथ लेना है. ठीक है, तो यहां पर लिखो, let us take the 4 consecutive terms. Let us take the 4 consecutive terms. Let us take 4 consecutive term of 1 plus x whole to the power n is rth term, r plus 1th term, r plus 12th term, and r plus 3rd term. Right? 4 consecutive term. Now A1 equals to TR, A2 equals to T, R plus 1,
A3 equals to T R plus 2, A4 equals to T R plus 3. That means ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है. According to the question these are given. A1, A2, A3. That means आपको नाम देने के लिए बोला गया. ठीक है. TR. How can you find this TR? If you want to find the rth term, that means you need to convert, you need to rearrange this R in the form of plus 1. So that means R minus 1 plus 1. So here in place of R, what should be put here? R minus 1. That means N C R minus 1 x to the power R minus 1. अब बीच में 1 to the power है. अब 1 to the power क्यों लिखे? जरूरत नहीं है. ठीक है. फिर T, ये तो ऑलरेडी फॉर्म में ही है, जरूरत नहीं है. सो दैट मीन्स N C R x to the power R. T R plus 2 है. R plus 2 मतलब R plus 1 plus 1. That is N C R plus 1 x to the power R plus 1. So R plus 3, that means T R plus 2 plus 1. That is N C R plus 2 x to the power R plus 2. क्वेश्चन में बोला गया A1, A2, A3, A4 be the coefficients of 4 consecutive term. Coefficients होगा A1, A2, A3, A4. Coefficients means whatever the terms is actually terms are exposed to the x term as well. Okay, that term is called the coefficient term. That means in the coefficient x, the variable expression should not be there. Okay, so that means ये जो A1, A2, A3, A4 है, ये तो कोफिशिएंट्स हैं. So that means ये वाला जो है x वाला टर्म्स हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे. उसको छोड़ के जो टर्म्स होगा वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. That means these are the coefficients. ठीक है. यहाँ पर भी ये भी नहीं है. So that means it is your equation number 1. ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है. Now all the values A1, A2, A3, A4, all the values should be put on this left hand side and that should be proved. Okay. So now left hand side start. Now left hand side. Now left hand side क्या है? A1 by A1 plus A2, A3 by A3 plus A4 equals to, बिठाओ. A1 क्या है? NC R minus 1 by NC R minus 1 plus A2 क्या है? A2 NCR plus A3 यहां पर क्या है? NCR plus 1 by NCR plus 1 plus NCR plus 2. Sorry, R plus 2. So it is your left hand side. Okay. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. अब इसको सॉल्व करना है. अब ये सबको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का और एक थ्योरम यहां पर यूज होगा. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके. थ्योरम है कि NCR और NCR प्लस 1 अगर ऐसा है, ठीक है. अब दो कॉम्बिनेशन टर्म दोनों के बीच अगर प्लस हुआ, सिमिलरिटी थोड़ा देखो. पहला जो टर्म होगा उसमें R होगा, सेकेंड में जो होगा उसमें एक ज्यादा होगा, सिमिलरिटी. तब आपको लिखना है N प्लस 1 C R प्लस 1. ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है. फिर दूसरा है जैसे NCR लिखते हैं ना हम लोग, उसको अगर हम लोग ऐसे भी लिखे N by R, मतलब यहां से ऊपर से एक N ले जाओ, नीचे से एक R ले जाओ, N minus 1 C R minus 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. हो गया. सो ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूलाज है, आप लोग लिख कर रखिए. ये दोनों फॉर्मूलाज यहां पर यूज होगा.
ठीक है, बस शुरू करो। अच्छा, यहां पर देखो एन सी आर माइनस वन, ओके, एन सी आर माइनस वन, ये दोनों में देखो, ये दोनों जो है प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो दैट मींस ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, दैट मींस फर्स्ट में जो रहेगा वो आर होगा, सेकंड में जो रहेगा उसमें एक ज्यादा होगा। यहां पर देखो एन सी आर माइनस वन, देखो ये आर माइनस वन है और यहां पर क्या है, आर है, एक ज्यादा है ना, है, सो दैट मींस ये फॉर्मूला तो ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आर के जगह क्या लिखा हुआ है, आर माइनस वन, तो आप भी क्या लिखेंगे, आर के जगह आर माइनस वन ही लिखेंगे। तो दैट मींस फॉर्मूला ये बनता है कि एन प्लस वन सी, एन प्लस वन सी क्या होता है, आर प्लस वन, दैट इज आर, एन प्लस वन सी आर, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और यहां पर जो है एन सी आर प्लस वन, ठीक है, फिर ये दोनों में फॉर्मूला कौन सा है, देखो आर प्लस वन है, इसमें एक ज्यादा है ना, आर प्लस टू, सो दैट मीन्स एन प्लस वन सी क्या है, आर प्लस वन, दैट इज आर प्लस टू। देखो ये दोनों फॉर्मूला यहां पर यूज किया है, ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूला प्लस होने से आपको मिडिल में अगर प्लस हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट मीन्स ऊपर जो है एन एन रहना चाहिए और सी आर प्लस वन, दैट मीन्स जो ग्रेटर होगा वही आपको लिखना है। दैट मीन्स एक सिमिलरिटी देख के आपको ये शॉर्टकट प्रोसेस याद रखना है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, दैट मीन्स जो ग्रेटर होगा वही आपको लिखना है। बस यहां पर भी देखो दोनों में एन एन तो ठीक है, आपको पहले ये देखना है कि ऊपर जो है सेम है कि नहीं, एन एन है, ग्रेटर कौन सा है, आर है, तो दैट मीन्स आपको आर ही लिखना है। ठीक है, और ऊपर एन प्लस वन, यहां पर भी दोनों में कौन सा ग्रेटर है, आर प्लस वन या फिर आर प्लस टू, आर प्लस टू ग्रेटर है तो नीचे आर प्लस टू लिखना है, ऊपर एन प्लस वन लिख देना है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद एन सी आर माइनस वन, नीचे जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन सी आर इक्वल्स टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, मतलब उधर एक एक कम हो जाएगा। इधर देखो नीचे क्या है, एन प्लस वन सी आर है ना, एक एक कम कर दो, दैट मीन्स एन प्लस वन बाई आर। ठीक है, तो एन प्लस वन से एन रह जाएगा, एक कम हो गया, सी आर माइनस वन। क्यों ऐसा किया, वो देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी सेम एन सी आर प्लस वन, तो यहां पर क्या होगा, एन प्लस वन बाई एक एक, यहां पर एन बाई आर, दैट मीन्स यहां पर एक एक आपका कम हो जाएगा, है कि नहीं। सो यहां पर दैट मीन्स एन प्लस वन बाई आर प्लस टू, तो यहां पर एक कम हो जाएगा, दैट इज एन सी, ये आर प्लस वन हो जाएगा, और देखो एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस वन कैंसिल। ये ऊपर नीचे कैंसिल करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये दोनों फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज यू कांट फाइंड द वैल्यू हियर, यू कांट प्रूव दिस गिवन एक्सप्रेशन। ओके, ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना ही है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो जो आधा पेज में कैलकुलेशन हो गया है ना, वो 4 पेज लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आर बाई एन प्लस वन प्लस आर प्लस टू बाई एन प्लस वन। आपको क्या प्रूफ करना है, अच्छा यहां पर एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, आर प्लस टू,
दैट मीन्स ट्वाइस आर प्लस 2 बाई n प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड का देख लो क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर क्या है देख लो। नाउ राइट हैंड साइड 2a2 बाई क्या है a2 प्लस a3, ऐसा ही तो है ना। हाँ, तो 2 इंटू a2 कौन सा था, a2 कौन सा था, NCR, NCR, उधर क्या है NCR प्लस NCR प्लस 1। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्म ही है, 2 इंटू NCR बाई ये दोनों प्लस, ये तो देखो ग्रेटर कौन सा है R प्लस 1, दैट मीन्स N प्लस 1 CR प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू NCR, नीचे क्या है कौन कौन सा आएगा N प्लस 1 बाई R प्लस 1, और इधर एक एक कम हो जाएगा NCR कैंसिल, दैट मीन्स ऊपर चला जाए 2 इंटू R प्लस 1 बाई N प्लस 1, दैट इज 2R प्लस 2 बाई N प्लस 1, which is equals to left hand side proved। लेफ्ट हैंड साइड का तो यही आंसर आया था, राइट हैंड साइड के भी सेम आंसर ही आ रहा है, सो दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूलाज आपको लिख के रखना है। जब हम लोग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर करेंगे तब हम लोग ये डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट प्रोसेस जो है, डिफरेंट फॉर्मूला जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, the third, fourth and fifth term in the expansion of third, fourth and fifth term in the expansion, एक expansion दिया गया, उसमें third, fourth, fifth term क्या है वो आपको यहां पर बोला जाएगा। लिखो third, fourth and fifth term of the expansion, third, fourth and fifth term of the expansion, third, fourth and fifth term of the expansion if third, fourth, fifth term in the expansion क्या है x plus a whole to the power क्या है whole to the power n is r, ऐसे लिखो r 84, 280, 560, okay, 84, 280, 560, then find x, a and n, ये तीनों का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा, यहां पर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म दिया गया 84 दिस है कि नहीं। हियर गिवन एक्सपेंशन क्या है x प्लस a होल टू द पावर n, सो t2 plus 1, that means nc2 x to the power n minus 2 a to the power 2, t4 क्या है t3 plus 1, that means nc3 x to the power n minus 3 a cube, t5 क्या है t4 plus 1 nc4 x to the power n minus 4 a to the power 4, 1 ये 2 है और ये 3 है, दैट मीन्स आपने थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म क्या होगा गिवन एक्सपांशन का वो आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो nc2 x to the power n minus 2 और a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो t3 क्या है ये 84 है, तो फिर nc3 x to the power n minus 3 into a cube equals to 280 दिया गया है। So this fifth term is nc4 x to the power n minus 4 into a to the power 4 equals to 560. That means equation number 6. So these equations are given.
according to the question which are given in this question, using that given condition, just I have constructed these equations 4, 5 and 6. Okay, now using these three equations, you will have to find the value of x, a and n respectively. Okay, अब नाउ ये आपने लिख लिया है कि नहीं, आपको x, a और n का वैल्यू निकालना है कि नहीं। सो लिखो, अब किसी तरह आपको रास्ता तो निकालना है। एनी हाउ जस्ट यू नीड टू फाइंड द लिंक बाय व्हिच you can find the value of x, a and n, okay, using these equations. So how can you find the value of x, a and n? That is the question actually. Okay, so just I am finding the link here, just see. Okay, 5 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से। इक्वेशन नंबर 5 जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो क्या होगा, nc3 x to the power n minus 3 a cube by nc2 x to the power n minus 2 a square equals to 280 by 84। ठीक है, अब यहां पर कुछ कैंसिलेशन होगा, शायद कैंसिलेशन होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर देखो एक कैंसिल, सो nc3 बाई nc2 इंटू x टू द पावर n माइनस 3 माइनस n प्लस 2 इंटू a, ऊपर a रहेगा और इधर कैंसिलेशन होगा क्या, ये 140 और ये 42, फिर 70 और इधर 21, ओके, 3 और इधर 10, दैट मीन्स 10 by 3। तो यहां पर क्या होगा, nc3 by nc2 इंटू x टू द पावर, ये क्या होगा, n तो कैंसिल, यहां पर -1 इंटू a इक्वल्स टू 10 by 3। सो nc3 by nc2 इंटू a by x इक्वल्स टू 10 by 3। ये एक मिला कुछ मुझे, ठीक है। सिमिलरली क्या करते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं, 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 6 मतलब यहां पर क्या है, nc4 x टू द पावर n माइनस 4 a टू द पावर 4 nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब इक्वल्स टू 560 बाई 280। ठीक है, तो यहां पर भी सेम ऐसा कुछ मिलेगा, nc4 बाई nc3 x टू द पावर n माइनस 4 माइनस n प्लस 3, और इधर एक कैंसिल, इधर a रहेगा और इधर हाफ रहेगा, शायद सॉरी 2 रहेगा, 2। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर क्या आ रहा है, nc4 बाई nc3, ठीक है, nc4 बाई nc3, यहां पर भी a बाई x आएगा इक्वल्स टू 2। ये भी एक कुछ इक्वेशन मिला, ठीक है। सो नाउ ये भी यहां पर देखो कुछ इक्वेशन तो मिला आपको यहां पर, है कि नहीं। अब नाउ एक काम करो, उसको 7 दे दो और इसको 8 दे दो। नाउ फ्रॉम 7 and 8, नाउ फ्रॉम 7 and 8, फ्रॉम 7 and 8 क्या लिख सकते हैं, यहां से कुछ लिख सकते हैं क्या, 7 और 8 से देखो तो कुछ इक्वेशन या फिर कुछ फॉर्म कर सकते हैं क्या यहां पर। दोनों में से देखो a बाई एक्स दोनों में ही कॉमन है,
तो दोनों से एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन से ही ए बाई एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं और वैल्यू को इक्वल लिख देते हैं। यहां से भी ए बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए बाई एक्स इक्वल्स टू NC2 बाई NC3 ओके इंटू 10/3। और यहां से भी ए बाई एक्स इक्वल्स टू NC3 बाई NC4 इंटू 2। ठीक है, अच्छा तो दोनों को देखो, ये भी ए बाई एक्स का आंसर है, ये भी ए बाई एक्स का आंसर, तो दोनों की इक्वल लिख सकते हैं NC2 बाई NC3 10/3 इक्वल्स टू NC3 बाई NC4 इंटू 2। ठीक है, अब नाउ एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देखो एक ये चीज हम लोगों ने पहले किया है। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला है, NCR बाई NCR माइनस 1। अगर इस फॉर्म में कॉम्बिनेशन रहे N माइनस R प्लस 1 बाई R, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। सो दैट मीन्स ऊपर अगर R रहे, नीचे एक कम होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर देखो रेसिप्रोकल है, तो यहां पर देखो लाइन जो है NC2 को देखो तो 3 माइनस 1 बाई NC3 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 10/3। यहां पर भी सेम NC4 माइनस 1 बाई NC4 इंटू 2। फॉर्मूला तो वही बन रहा है ना, देखो NCR माइनस 1 बट रेसिप्रोकल आ रहा है, तो दैट मीन्स आप यहां पर रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये R का वैल्यू क्या है, यहां पर 3 है, तो रेसिप्रोकल कर दो R बाई N माइनस R प्लस 1, तो R की जगह क्या यूज करना है, 3। ठीक है, यही फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया, देखो इंटू 10/3 इक्वल्स टू, ये भी देखो NCR माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट मीन्स R माइनस 1। यहां पर तो ये NCR ऊपर रहना चाहिए, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेने से R जो है ऊपर चला जाएगा। यहां पर R क्या है, 4 बाई N माइनस R प्लस 1 इंटू 2। देखो बन गया ना, है कि नहीं। ये फॉर्मूला साइड में लिख के रखो सेंस बोल के, 3 बाई N माइनस 2 इंटू 10/3। उधर क्या है, 4 बाई N माइनस 3 इंटू 2। यहां पर 3 कैंसिल, है कि नहीं। ये 2 से ये 5, सो दैट मीन्स 5 बाई N माइनस 2 और इधर 4 बाई N माइनस 3। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा देखो 5N माइनस 15 इक्वल्स टू 4N माइनस 8। सो दैट मीन्स N इक्वल्स टू 7। N इक्वल्स टू क्या है, 7 आ गया। N इक्वल्स टू क्या है, 7। ठीक है, N इक्वल्स टू क्या आ गया, 7। नाउ ये जो N का वैल्यू 7 निकला, ये इक्वेशन नंबर 7 और 8 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 और 8 में पुट कर देते हैं। ठीक है, so from 7 and 8 ऐसे लिखो, from 7 and 8, from 7 and 8 दोनों में एक काम करते हैं, n का वैल्यू बिठा देते हैं। ठीक है,
ये इक्वेशन नंबर 7 क्या था? क्या था? a by x इक्वल्स टू 10 by n minus 2. a by x इक्वल्स टू 10 by n minus 2. ऐसा ही कुछ था, क्योंकि देखो लास्ट में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर, कैलकुलेशन करके ये nc 3 by nc 2 उसको हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था करके, तो ये आंसर आया था 10 by n minus 2. ठीक है, वहां से देखो a by x इक्वल्स टू 10 by n minus 2, दैट मीन्स 7 minus 2 5. So a equals to twice x. ठीक है, a equals to क्या मिला आपको? twice x मिला. Now from 1 अब इक्वेशन नंबर 1 में जाओ. क्या था? t3 इक्वल्स टू, यहां से हम लोग x या फिर a किसी एक का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, t3 इक्वल्स टू क्या था? nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a square equals to 84. nc2 that means 7c2 x to the power 7 minus 2 a means यहां पर क्या है? ये twice x whole square equals to 84. तो फैक्टोरियल 7 by फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 5. ठीक है, वो 7 minus 2 है ना, 5. x to the power 5 2 square x to the power 2 equals to 84. So 7 into 6 into factorial 5 में स्टॉप करते हैं, और इधर 2 into factorial 5 x to the power 7 into 4 equals to 84. तो यहां पर दिस कैंसिल और यहां पर 3. तो यहां पर 84 into x to the power 7 equals to 84. 84 cancel. X to the power 7 equals to 1. That is x equals to 1. Now बाकी है कौन सा? a का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं a का वैल्यू ये. So a equals to twice x है ना, so that means a equals to 2 into 1, that is 2. तो x का वैल्यू, a का वैल्यू क्या मिला आपको? 2. x का वैल्यू क्या मिला और n का वैल्यू क्या मिला? ये वैल्यू तो मिल गया आपको. So this question, this type of questions are very very important. Okay, entrance के लिए भी और बोर्ड के लिए भी. ठीक है, so these questions you need to solve this type of questions. Okay, ठीक है. तो आज सिर्फ इतना ही. See you tomorrow, and tomorrow just we will solve this 3 or 4 questions from this binomial theorem, and because this type of questions are very lengthy and actually very time consuming. Okay, so we need to solve this type of questions very seriously, because everywhere the very depth calculations are there, that you can see everywhere the calculations are going on. If anywhere any kind of mistakes will be happened, then the whole answers will be disturbed and the whole answer will be wrong. Okay, so just line by line आपको कैलकुलेशन जो है ठीक तरह से करना है. जो मैंने जो किया है वो भी आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, और मेरा एक ये मतलब ये जो है ये रोग होता है कि ये प्लस माइनस उसमें गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, और इसमें ये छोटा बोर्ड है, पहले का कुछ दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो यहां पर आपको इस टाइप का कैलकुलेशन जो है आपको ठीक तरह से कैलकुलेशन करना है और प्रिपेयर होना है फॉर द बेटर रिजल्ट. ओके, सो if you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel. Okay, thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.